Good morning, students. Welcome back to computer class. Yesterday, we have discussed algorithm and flowchart. What are the symbols used in flowchart? Now, I am going to discuss what is machine language, what is assembly language, what is high level language. What do you mean by compiler and interpreter? Absence of language makes the communication very difficult. Now, try to communicate with a computer which cannot do anything on its own and requires instructions. Do you think we can give the instructions to the computer in mother tongue? Which language computer can understand? Yes, computer can understand only one language, that is machine language. It is also known as binary language. It is in the form of 0 and 1. 0 means off, 1 means on. It is machine independent language. Programming language. Each computers were programmed in machine language. You can well imagine writing in ones or zeros all day will leave you too prone to mistake. So we use codes. It looks like English programming becomes very easier. Use of mnemonic codes such as LDA for load, STA for store, sub for subtract. It means code is easier to write. The programming language that use mnemonics for writing codes. इसके लिए जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन MUL, एडिशन के लिए for add. With the need of these programs simpler, we also use high level language. These language, high level language, it looks like English words or mathematical symbols for writing the programs. जो कल मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, let a is equal to 10, b is equal to 20, तो ये किसका है? इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल. ये है बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज. क्विक बेसिक, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल लैंग्वेज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्विक बेसिक, इसकी आपने प्रोग्रामिंग करनी है और ये किसके अंडर है? इट इज हाई लेवल लैंग्वेज. ट्रांसलेटर प्रोग्राम. You must be wondering that computer can understand only machine language. How can communicate with computers in assembly language or high level language? अब बच्चों कोई भी चीज है, ट्रांसलेटर, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज है चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? मशीन लैंग्वेज में, विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. जो भी लैंग्वेज हमारी असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई है वो क्या है? सोर्स कोड. इसको जो कन्वर्ट करेगा असेंबलर, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मशीन कोड. इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड. असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. नेक्स्ट है बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ high level language. We need different translators for different languages. अगर मान लो हम में से कोई चाइना गया तो हमें वहाँ की चाइनीज नहीं आती, तो क्या हमें ट्रांसलेट जर्मन गए तो जर्मनी नहीं आती? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. वो इंडिया में आए तो उनको हिंदी नहीं आती, तो ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को समझाते हैं. जैसे मिनिस्टर्स वगैरह गए तो वो उनको एक्सप्लेन करते हैं. ऐसे ही हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे.
If we are working on C++ language, we require C++ translator, that is compiler. If we are working on Quick Basic, we require interpreter for Quick Basic. अब इसमें आपने नेक्स्ट टाइम जो आप करोगे क्विक बेसिक, इसके लिए हमें इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपके पास C++ लैंग्वेज जब आप करोगे +1 +2 में, तो कंपाइलर की जरूरत होती है. इंटरप्रेटर, it fetches single instruction or a single step of program written in high level language. ये जो भी लैंग्वेज है ये ट्रांसलेट किस में होगी? मशीन लैंग्वेज में. The cycle of fetch, translate, execute is repeated for all the instruction. If there is an error, इंटरप्रेटर जब आप प्रोग्राम करोगे, अगर आपकी एरर है लाइन में, तो उसी टाइम ये स्टॉप हो जाएगा. जब तक आप इसको प्रोग्राम को ठीक नहीं करोगे तो ये रन नहीं करेगा. If there is an error in instruction, the interpreter terminates its process at that statement, displays an error message. क्योंकि ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है. जैसे अपने मैथ्स के हो गए सम्स, तो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं. अगर फर्स्ट स्टेप रॉन्ग है तो आगे भी आपका सम क्या हो जाएगा? रॉन्ग. आफ्टर करेक्टिंग द एरर, जब तक आप करेक्ट नहीं करोगे, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज सबमिटेड अगेन. वो फिर से बताएगा एरर है आपकी लाइन 20 में. क्विक बेसिक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर. नेक्स्ट है बच्चों कंपाइलर. लैंग्वेज प्रोसेसर that translates the complete program as a whole in one go with machine code. ये सारे प्रोग्राम को एट ए टाइम ही चेक करता है और एरर ये आपको लास्ट में बता देता है. The program written in high level language is called source code. The program translated into machine language is known as object code. जो भी प्रोग्राम चाहे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में है, चाहे आपके असेंबली लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड. जो ट्रांसलेट होके मशीन कोड में आता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड. कंपाइलेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुल if source code is free of errors. If there are any errors in the source code, the compiler specifies all the errors with line number. आपको मैंने बता दिया ना, उसमें ये एरर बता देगा. लाइन 20 में है, लाइन 50 में है, वो एरर है. कंपाइलर जब आप कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम, एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको बता देगा. इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन चेक होता है. The error must be removed before the compiler can successfully recompile the source code again. फिर इन एरर को हम वन बाय वन करके एरर को रिमूव करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर चेक्स द होल प्रोग्राम एज अ इनपुट. ये सारे प्रोग्राम को चेक करता है. वाइल इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक एक लाइन को चेक करता है. अगर फर्स्ट लाइन ठीक है तो सेकंड, अगर सेकंड में एरर है, जब तक सेकंड को आप ठीक नहीं करोगे तो थर्ड लाइन में नहीं जाएगा. इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड. नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड. मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर, object code is generated. Memory requirement is less. Program need to be compiled every time. लेकिन इसमें क्या है? Every time higher level language is converted into low level language. All errors are displayed after entire program is checked. सारी की सारी errors बता देते हैं. लेकिन इसमें errors are displayed for every instruction इंटरप्रेटेड वन एट अ टाइम. इसका एग्जाम्पल है सी, कंपाइलर का C++, और इसमें जो एग्जाम्पल है इंटरप्रेटर का क्विक बेसिक.
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर एक्टिविटी जो है आपकी 117 पे जो दी हुई है बेसिक, सबकी फुल फॉर्म भी नहीं है और किसने डेवलप किया, ये सारी चीजें आपने अपने बुक में नोट करनी है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, सी कंपाइलर, C++, कंपाइलर विद क्लासेस प्लस प्लस। इसका ईयर और डेवलप बाय ये सारे के सारे आपने अपनी बुक में नोट करना है। चैप्टर 6 ओवर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे आपका चैप्टर 7 क्विक बेसिक, इसके आपने साथ साथ प्रोग्राम भी करने हैं, उससे आपको पता चलेगा कैसे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर हमारा चेक करता है प्रोग्राम को। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और इसी से चैप्टर 6 को रीड कर लेना और एक्टिविटी जो आपकी पेज दी हुई है वो आपने बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।